ایمان کے خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا، لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد تنویر۔ آج ہم ایک ویڈیو دیکھنے والے ہیں، ایک یہ ریئل اسٹوری ہونے والی ہے۔ جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا واقعہ۔ تو آج ہم اس اسٹوری میں حضرت آسیہ کا واقعہ امبر وائس چینل سے ہم یہ ویڈیو دیکھیں گے۔ اور چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کرتے ہیں بات۔ ایمان کے خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا، لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت و آفت کے دور میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت کچھ علاج کرایا تھا مگر وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے اسے بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر ملی جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گا۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا۔ اس بچے کا لعب دہن جیسے ہی ان کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کی بدن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور وہ بے اولاد تھی، لہٰذا اس پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لی۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا خاوند جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامسس ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔
लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने हज़रत आसिया को फ़िरौन के शर से महफूज रखा और वो आप पर कादिर न हो सका। मवर्रखीन लिखते हैं कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द बना दिया था, और बाज़ ने लिखा कि फ़िरौन को ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने उसे सारी उम्र सोहबत करने से मना कर दिया था, लिहाजा फ़िरौन कभी भी हज़रत आसिया के करीब न जा सका। ये भी अल्लाह की एक हिकमत थी ताकि बीबी आसिया फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रह सके। बहरहाल हज़रत मूसा की परवरिश फ़िरौन के महल में किसी शाही फ़र्द या शहज़ादे के मानिंद हुई। हर तरह के आराम व आराइश आपके लिए दस्तयाब थे, लेकिन तिब्बतियों के दरमियान ज़िंदगी गुजारने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम फ़ितरी तौर पर उनसे मुख्तलिफ़ किरदार के मालिक थे। हज़रत मूसा फ़िरौन के गुरूर व तकब्बुर और खुदाई के दावों को नापसंद किया करते थे और हमेशा तौहीद के मुताल्लिक वाज़ेह बात किया करते, जो फ़िरौन और उसके दरबारियों को नागवार गुजरती थी। बहुत जल्द वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और आप फ़िरौन के दरबार में इस्लाम की दावत लेकर तशरीफ़ लाए। उस वक्त फ़िरौन के मुतालबे पर जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सहर का मुकाबला हुआ, जिसमें हज़रत मूसा की असा हकीकी सांप में तब्दील हो गई और जादूगरों पर हक़ वाज़ेह हो गया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जिन्हें हमारी हिदायत के लिए भेजा गया है। जबकि फ़िरौन अपने अना और गुरूर पर कायम रहा और मूसा अलैहिस्सलाम के दावत का इनकार कर दिया। इसी दरबार में बीबी आसिया भी मौजूद थी, लिहाजा आपने जब ये सनसनीखेज़ मंजर देखा तो आपके दिल में फ़ौरन हक़ का नूर चमक उठा और आप मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। बीबी आसिया फ़िरौन मिस्र की बीवी और मलका थी। आपके पास माल व दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर व तकब्बुर का शिकार नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफ़क़त व मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोल कर उन पर सदका व खैरात किया करती। इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की माँ भी कहा जाता है। चूँकि बीबी आसिया अपने शौहर रामेसस के मजालिम को भी खूब जानती थीं, इसलिए अपने ईमान का इजहार न किया। आप छुप छुपा कर एक अल्लाह की इबादत किया करती और अल्लाह से ये दुआ करती कि ए अल्लाह, मुझे फ़िरौन और उसके अमल से निजात दे, मैं उसके कुफरिया हरकतों से बेजार हूँ। हज़रत आसिया खुफिया तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा की इबादत करती और दुआ व इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहती। यहाँ तक कि फ़िरौन को एक दिन आपके ईमान लाने की खबर हो गई। उसने एक रोज़ अपने दरबारियों से कहा, क्या तुम लोगों को मेरी बीवी की कुछ खबर है? तुम लोग उसके मुताल्लिक क्या जानते हो? सब ने बीबी आसिया की बड़ी तारीफ़ की और उनकी भलाइयाँ बयान की। फ़िरौन ने कहा, क्या तुम लोगों को नहीं मालूम वो मेरे सिवा दूसरे खुदा को मानती है? लिहाजा फ़िरौन ने हज़रत आसिया को दरबार में बुलाया और उनसे दरियाफ़्त किया कि तू किसे अपना माबूद मानती है। हज़रत आसिया ने दिलेरी और जज्बा ईमानी से जवाब दिया कि मैं मूसा के रब पर ईमान रखती हूँ, जो मेरा, तेरा और हम सब का खुदा है। फ़िरौन इस बेबाक जवाब पर गज़बनाक हो गया और बहुत जल्द पूरे शहर में इस बात की शोहरत हो गई कि फ़िरौन की बीवी और मलका ने फ़िरौनी तौर तरीके को ठुकराते हुए दीन मूसा कबूल कर लिया है। पहले तो फ़िरौन ने बीबी आसिया को समझा बुझाकर, तरगीब दिलाकर और डरा धमकाकर मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ने को कहा, लेकिन जब उसने हज़रत आसिया के चट्टान जैसे मजबूत ईमान और जज्बे को देखा तो उसने जुल्म व बर्बरियत से काम लेने की ठान ली। फ़िरौन ने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि आसिया को तपते हुए रेगिस्तान की धूप में लटा दिया जाए, लिहाजा आपको शदीद गर्मी में रेत के तपते मैदान में छोड़ दिया गया। फ़िरौन उस जगह दौरा करता रहा और कहता रहा कि अब तू बाज आ जा, अगर तूने मेरी बात मान ली तो महल की शाही ज़िंदगी और आराम व आराइश तेरी मुंतज़िर है। मगर हज़रत आसिया पर इसका कोई असर न हुआ, क्योंकि आपको जन्नत के उस लाफानी मोहल्लात पर ईमान था जो अल्लाह ने उन्हें अता करने का वादा किया था। जब फ़िरौन ने हज़रत आसिया की साबित कदमी को देखा तो उसने आपको शहीद करने का फ़ैसला कर लिया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बड़ी से बड़ी चट्टान कहीं से उठा लाओ और आसिया को चित लेटाओ और वो चट्टान उस पर गिरा दो।
लिहाजा जब ये लोग पत्थर लाए और हज़रत आसिया को लिटाया गया तो आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो परवरदिगार ने हिजाब हटा दिए और जन्नत को और वहाँ जो महल उनके लिए बनाया गया था उसे उन्होंने अपनी आँखों से देख लिया। आखिरकार उस पत्थर को आप पर गिरा दी गई और आपकी रूह परवास कर गई। हज़रत आसिया के फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में कुछ इन अल्फाज से आए हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में से तो बहुत से दर्जा कमाल तक पहुँचे, लेकिन औरतों में से सिवाय फ़िरौन की बीवी आसिया और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान के और कोई औरत दर्जा कमाल तक नहीं पहुँची। इस तरह एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल खदीजा बिनते खवेल्द, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद और फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मुज़ाहिम और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान है। एक रिवायत में आता है कि बीबी आसिया का निकाह जन्नत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। लिहाजा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनते इमरान, मूसा की बहन कुलसूम और फ़िरौन की बीवी आसिया के साथ होगा। हमने देखा कि हज़रत आसिया ऐसी हुकूमत के साथ ऐसे दरबार के अंदर इस कदर माल व दौलत, इताअत गुज़ार ग़ुलाम और कनीज़ों के साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी थी, लेकिन उन्होंने हक़ को कबूल किया और मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर ईमान ले आई। हालांकि उन्हें मालूम था कि ईमान लाने की वजह से उनकी तमाम खुशियाँ और मकाम व मनसब छिन सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, लेकिन आपने हक़ को कबूल किया और अपने गुज़श्ता आमाल पर तौबा कर ली। बिलाशुबा तौबा करना और ईमान पर मजबूती से कायम रहना कोई आसान अमल नहीं, लेकिन जो शख्स भी इस दुनिया की मुश्किलात से गुज़र कर अल्लाह की इताअत करेगा और इंसानों के बजाय अल्लाह से डरेगा तो आखिरत में उसके लिए बेहतरीन लाफानी ज़िंदगी है। कितनी इन्होंने तकलीफ़ें उठाई हैं और फ़िरौन ने उनको कितना डराया धमकाया कि उस रब की इबादत मत कर, लेकिन वो अपनी बात पर अटल रहीं। उन्होंने बिल्कुल भी फ़िरौन की बात नहीं मानी। लास्ट में फ़िरौन ने उनको मार दिया। तो ये एक रियल स्टोरी थी। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं